Assalamualaikum aspirants. Welcome back to Research Hour. This is me, Aisha Kafar here. I hope you people are doing great in your lives. So today I will be talking about another scholarship opportunity, and this opportunity is not only for PhD students. It's for like BS, MS, and PhD students. So if you people are looking for BS scholarships, so this is a like great opportunity for you guys, and many of you people have been asking me in the comments ke, please ma'am tell us about BS scholarship. So this video is dedicated to all those students who are asking me in the comments. Okay, so please make sure to watch this video till end, so that you can understand all the strategies and you can understand the eligibility criteria, the requirements, and scholarship types, and which kind of scholarship they are providing to the students. Okay, so I am again telling you guys कि इस advertisement पे मत जाइएगा, because I explored all the things, and like you can see here that there is no IELTS required, but that's not true. Okay, इनकी जो official website है, if you people go there and check out there, they said that they require IELTS. So I will be guiding you one by one all the things. Okay, so let's start the video. ये है जी इनकी वेबसाइट. Like this is not the official website, but this is the advertisement. So we will go through this advertisement first, and then we will go through the like official website, which is this website. Okay, so first of all, Asia Pacific University MEXT scholarship 2025 in Japan like open हो चुके हैं, and without IELTS I don't understand why I don't understand the purpose of writing without IELTS. Okay, so let's ignore this thing firstly. Okay, so डिटेल्स आप लोग साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. यहाँ पे आते हैं जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे. स्टार्ट विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. सो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर लाइक एप्लीकेंट मस्ट मीट वन ऑफ द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इन ईदर इंग्लिश और इन जापानीज. सो जापानीज में आप लोगों की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना इज डिफिकल्ट टास्क फॉर यू गाइस. सो यू कैन easily like meet the English requirements, so which is holds an English proficiency test score equivalent to B2 or above on the Common European Framework reference. Okay, so IBT like IBT TOEFL 72 or above, or IELTS 5.5 or above. So IELTS 5.5 or above band score is like you can easily get this score. This is not a higher score. You can easily get this score without any kind of preparation. Like you cannot you don't need to be a like professional, like you don't need to be a like you can say that hard work. ठीक है, आप लोगों को किसी किस्म का हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है. आप लोग इजीली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड यू कैन इजीली एज द वर्क, लाइक यू कैन इजीली एज द टेस्ट. ओके, सो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिफोर अप्लाइंग यू मस्ट टेक द IELTS टेस्ट, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. लाइक इफ़ यू पीपल आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिग्रीज, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, सो IELTS इज लाइक मैंडेटरी. ओके, सो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? इंटेंट टू स्टडी अब्रॉड इन जापान फ्रॉम ओवरसीज. ओके, सो नॉट हैव जापानीज नेशनैलिटी. जापानीज नेशनैलिटी वालों को ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगे. सो मेक श्योर के इफ़ यू पीपल आर लिविंग लाइक इन एनी कंट्री, ठीक है, you can if you are not having Japan's nationality, you can also like eligible to apply. Okay जी, so we born on आफ्टर 12 अप्रैल 1989, तो इस हिसाब से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर अब मैं आप लोग के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो है दोज हु आर सर्विंग ऑन एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी और सिविलियंस employed by the military at the time of application are not eligible to the scholarship. Okay, so remember this thing. उसके बाद जी those who apply for the scholarship cannot have received an MEXT scholarship in the past unless they have more than 3 years of educational research experience after the final payment of the previous MEXT scholarship award. Okay,
उसके बाद जी those who apply for the scholarship cannot be applying for another MEXT scholarship. जिसको एक दफ़ा ये scholarship मिल गया वो दोबारा इस scholarship पे apply नहीं कर सकता. Must remember this thing. But yeah, it's more than enough कि अगर आपको ये scholarship एक दफ़ा मिल जाती है, you can easily क्या कहते हैं कि आप easily अपनी अपना जो आपका जो गुजारा हो सकता है ना वो easily हो सकता है इस scholarship के through. Okay. ओके जो लोग ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं कैन नॉट रिसीव अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अनदर स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ रूल. आप लोग कहीं और से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते. लाइक इफ यू पीपल आर हैविंग दिस स्कॉलरशिप यू कैन नॉट अप्लाई टू अनदर स्कॉलरशिप. Recipients of the scholarship must have a student as their status of residence visa status in Japan. Okay. अवार्ड की बात आती है. अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कितना स्कॉलरशिप मिलेगा आपको. ठीक है. 100% ट्यूशन फीस कवर होगी. आप लोगों को ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी. उसके अलावा जी लिविंग एक्सपेंस आपके अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी. और उसके बाद जी इकोनॉमिक क्लास एयर ट्रैवल टिकट बिटवीन द होम कंट्री एंड जापान और द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड एंड द प्रोग्राम. लाइक आपको आई थिंक 2 टाइम्स एयर टिकट फ्री एयर टिकट आपको मिलेगी. और अगर आपने इसके बिटवीन में आना है अपने प्रोग्राम के तो आई थिंक आप लोगों को अपनी एयर टिकट पे आना पड़ेगा क्योंकि ये लोग जो है ना वो इतनी एयर टिकट प्रोवाइड करते हैं. दे इन्होंने लिख भी दिया. ओके. एप्लीकेशन पीरियड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नवंबर 15 2024 तक जो है ना सितंबर 2025 के लिए जो इनरोलमेंट है वो नवंबर 15 तक डेडलाइन है इसकी. आप नवंबर 15 2024 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. And I am making this video in September 8, so I will be uploading this video on 9 September. So आप लोग के पास almost 1 month होगा. तो 1 month के दरमियान आप लोग IELTS टेस्ट भी दे सकते हैं. You can prepare your documents and you can apply. Okay, document requirements कौन कौन सी हैं जी. ये कोई ख़ास requirements नहीं है. ये हर जितनी भी वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं, if you people have watched any of my videos before, सो उसमें भी मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं कि कौन कौन से रिक्वायर होंगे. अभी भी बता देती हूँ. एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो कि इनकी इस वेबसाइट से आपको मिलेगा. इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे. फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान यू हैव टू हैव अ you have to write a research plan before applying to any kind of scholarship. ये आप लोग के पास होना चाहिए. ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपके होने चाहिए. सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए. ठीक है. सॉरी. एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस आपके पास अगर इफ यू पीपल आर अप्लाइंग फॉर PhD सो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए थीसिस का. प्रूफ ऑफ हाई परफॉर्मेंस और गुड अचीवमेंट रेकॉर्ड्स होने चाहिए. रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए प्रोफेसर्स की तरफ से. फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके पास. सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसको IELTS टेस्ट बोलते हैं. उसके बाद CV होनी चाहिए और उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट. ओके. एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने सबमिट करानी है अपनी एप्लीकेशन. ठीक है. APU एप्लीकेशन बाय नवंबर 15. एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप. APU रिव्यूज एप्लीकेशन सबसे पहले APU जो है वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा, सेलेक्ट करेगा आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स को, फिर रिकमेंड करेगा MEXT जो स्कॉलरशिप्स है इसके लिए. ठीक है. आपकी जो है ना एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी APU जो है ना बेसिकली एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है. सो आपने वहाँ पे जाके पहले अप्लाई करना है. ठीक है. ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. पहले अपने एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी पे जाके अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशंस को वो डॉक्यूमेंट्स को वो असेस करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड देन दे सेलेक्ट द आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स एंड देन दे रिकमेंड टू दोज कैंडिडेट्स टू MEXT. ठीक है. जिस तरह चाइना में हम अप्लाई करते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी में और फिर वो रिकमेंड करते हैं CSE स्कॉलरशिप्स के लिए. सो दिस इज द सिमिलर प्रोसेस. Applicants selected to be recommended for these scholarships are notified with their final APU applications results. Okay, Asia Pacific University का जो भी जहाँ पर भी पोर्टल होगा ना जहाँ पर जाके अप्लाई किया तो वो फिर वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Selected applicants complete and submit additional MEXT application documents to APU. ठीक है. उसके बाद जो फाइनल स्कॉलरशिप्स होंगे ना वो MEXT की तरफ से आप लोगों को मिल जाएंगे. ओके.
So yeah, this was the video and this was the scholarship to study in Japan. और आप लोगों के साथ मैंने each and everything यहाँ पे share कर दी है. I hope आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. And if you people have any kind of query, you can like tell me in the comments below. I will always be there for you. मैं जहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर सकी ज़रूर करूँगी. सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है. आप लोगों को ये सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि आपने APU पे अप्लाई कैसे करना है. MEXT स्कॉलरशिप से ये वाली वेबसाइट जो है यहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप्स के बारे में देख भी सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एसेस फ्रॉम दिस वेबसाइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.